حامدا ومصليا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ، مہمان خصوصی، علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے پیارے پیارے بچوں، آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ آپ لوگوں نے جو مسلسل 1 سال اس مدرسے کی 4 دیواری محنت کی ہے، اس محنت کا بہتر سے بہتر نتیجہ آج ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں سال بھر اس مدرسے کو جو ہے بچوں کے پاس آتا ہوں، اساتذہ سے ملاقات کرتا ہوں، میٹنگ میں شرکت کرتے رہتا ہوں اور مسلسل تعلیمی اور تربیتی جو نشاطات ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، اس میں بار بار شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے. تو جو محنت سال بھر کر رہے تھے ہمارا اساتذہ، ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں یہ ثمرہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. اور ان پیارے پیارے بچوں کے ماں باپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو ایک ایسے ادارے میں ایڈمیشن دلایا ہے جو ادارہ جس انداز سے کام کر رہا ہے، ذمہ داران جس انداز سے کام کر رہے ہیں، اساتذہ جس انداز سے کام کر رہے ہیں، یہ انداز شاید ہی کسی اور مدرسے میں نظر آ رہا ہو. لیکن یہ خیر کی علامتیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے مختلف علماء کرام سے سنا، یہ خیر کی علامتیں بہت زیادہ اس میں پائی جا رہی ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کے بچے یعنی سیف ہینڈ میں ہیں، آپ کے بچے محفوظ ہاتھوں میں ہیں، محفوظ اساتذہ کے نگرانی میں آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آپ کے بچے اللہ تبارک و تعالی کی کفالت میں ہیں، ذمے میں ہیں. اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھا ہے. تو ظاہر بات ہے اس قرآن کا حامل جو ہے، اس قرآن کا حافظ ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں شامل ہے. جب کتاب اللہ کی حفاظت میں شامل ہے تو صاحب کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں شامل ہے. اور اس بات کا ہمیں اطمینان ہونا چاہیے. لیکن حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں اور ہمارے ملک کے حالات جو ہے ہر آنے والے دن، ہر آنے والا مہینہ تبدیل ہوتے جا رہا ہے. اور یہ ان تبدیل ہونے والے حالتوں میں اگر ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے آنے والی نسل کے بارے میں، اپنے ان آنکھوں کے تاروں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تو پھر انجام بھی بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. آنے والے حالات یعنی تعلیمی حالات کافی بدل رہے ہیں. اسی سال سے NEP جو ہے نافذ ہونے والا ہے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو آنے والی ہے، اور اس پالیسی کے اندر زعفرانی رنگ کو بھر دیا جائے گا. مسلسل جو ہے غیر اسلامی تہذیب کو بسایا جائے گا، رچا جائے گا. اور ہو سکتا گورنمنٹ سکولز کے اندر سرسوتی کی پوجا لازم قرار دی جائے اور بھگوت گیتا کو لازم قرار دیا جائے. ایسے آثار نظر آ رہے ہیں. اگر ہماری سکولوں میں اگر یہ طوفان بدتمیزی آ جاتا ہے تو ان کے جو ہے حفاظت کی ذمہ داری یہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مدارس کے کندھوں پر اور بڑھنے والی ہے. اور اس طرح کے مدرسے بہت ہی مختصر ہیں. میں نے پچھلے 1 ماہ کے اندر کئی شہروں کا جو ہے دورہ کیا. ابھی جو ہے اسی جمعہ میں پٹنہ میں تھا، وہاں پر میں نے جائزہ لیا کہ بھائی پورے شہر پٹنہ جو کہ 25 لاکھ کی آبادی والا شہر ہے، اس میں ہماری مسجدیں بڑی مشکل سے 10 اور 15 20 کی جو ہے تعداد میں ہماری مسجدیں ہیں. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ بھئی وہاں پر کتنے مکتب ہیں، کتنے مدرسے ہیں. تو مکتب کا تو جن لوگوں سے میں نے کانٹیکٹ کیا ان کو تو اس کا علم نہیں تھا، مدرسوں کا بارے میں ان کو اس سلسلے میں کوئی جو ہے علم نہیں تھا. تو وہ لوگ اپنے اپنے اپارٹمنٹ میں اپنی معصوم بچوں کو لے کر نماز پڑھ رہے ہیں. انہیں قریب جانے کے لیے ایسی کوئی مسجد بھی ان کو نہیں ہے. 25 لاکھ والے آبادی والے پٹنہ کا شہر یہ ہے. وشاکھپٹنم کا دورہ کیا میں نے، جہاں پر 23 لاکھ کی آبادی ہے اور مسجدیں بھی جو ہے ہمارے مختصر ہیں. مکتب بھی صرف 3 مکتب چل رہے ہیں.
विजयवाड़ा जो कि 22 लाख की आबादी वाला शहर है, और बल्लारी का हमने दौरा किया, हॉस्पिटल का दौरा किया, हरपनहल्ली का दौरा किया। हरपनहल्ली माशाल्लाह बहुत ज्यादा दीनी अवेयरनेस हमने पाया। शिवमोगा का हमने दौरा किया, धारवाड़ का हमने दौरा किया, हर जगह का हमने दौरा किया। तो समझ में आ रहा है कि तूफानी बदतमीजी का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, अभी हमारे पास कोई जराए नहीं है, हमारे पास ऐसी जो है अवेयरनेस नहीं है। तो ये मदारिस अवेयरनेस पैदा करने के सबसे बड़े जरिए हैं। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे दिन भर जो है बाहर जा रहे हैं, दुनिया से सामना कर रहे हैं। तो जरा देखें आप, हमारे बच्चों के दिलों के ताल्लुक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाया है, क्या फरमाया है? कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चे का दिल इस तरह साफ और शफाफ होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, फितरत इस्लाम पर बच्चा पैदा होता है तो इस तरह उसका दिल पाक और साफ रहता है। लेकिन ये दिल पाक और साफ हमेशा लेकर नहीं फिर सकता है, हमेशा लेकर नहीं घूम सकता है। अब जरा देखें कि इस बच्चे के दिल को बिगाड़ने वाली चीज कैसे उसके पास आती रहती है। ये बच्चे का दिल जो है बिगड़ता जा रहा है। थोड़ा सा वो व्हाट्सएप देख लेता है, बिगड़ जा रहा है। थोड़ा यूट्यूब देख लेता है और जरा बिगड़ जाता है। थोड़े गली मोहल्ले में खेलता है और गालियां सीखता है, और कभी गाने सीखता है, कभी गालियां सीखता है, कभी हालात में वो यानी स्कूलों के अंदर अकीदा बिगाड़ कर इस तरह हमारे बच्चे का दिल काला कलोटा होते जा रहा है। हमारे बच्चों का दिल, आने वाला तालीमी सिस्टम, आने वाले हालात इस तरह उसके दिल को परागंदा करने वाले हैं, उसके दिल को बिगाड़ने वाले हैं। अगर हमने इस दिल को छोड़ दिया अपनी हालत पर, स्कूलों में छोड़ दिया अपने बच्चों को, और तवज्जो नहीं दी हमने अपने बच्चों को मकतब की शक्ल में, मदरसे की शक्ल में, तालीम की शक्ल में, तरबियत की शक्ल में अगर हमने तवज्जो नहीं दी तो ये दिल इसी तरह और काला 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 होते जाने वाला है। उसके बाद हम अगर उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों से कि वो नेक बने, सालेह बने, माँ बाप के फरमाबरदार बने, कौम को लेकर आगे बढ़ने वाले बने, तो हालात इसका हमें जो है यानी सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। तो इस तरह गंदे दिल को साफ करने के लिए ये हमारे मदरसे हैं माशाअल्लाह, जो कि मदरसे क्या कर रहे हैं, उसको कुरान की तालीम दे रहे हैं, थोड़ा सा उसको साफ कर रहे हैं, उसको अस्कार पढ़ा रहे हैं, फिर थोड़ा सा साफ उसको कर रहे हैं, फिर उसको दुआएं पढ़ा रहे हैं, फिर थोड़ा उसको साफ कर रहे हैं, फिर उसको तरबियत की जा रही है, फिर थोड़ा उसको साफ कर रहे हैं, फिर उसको जो है यानी आदाब सिखाए जा रहे हैं, फिर उसको साफ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे बच्चों का दिल साफ करने के लिए ये सारे के सारे इदारे काम कर रहे हैं, ये मकतब काम कर रहे हैं। मकतब का जाल हर शहर में, हर मस्जिद में लाना जरूरी है। अगर ये नहीं लाओगे ना तो फिर आने वाले हालात में क्या होगा हमें जो है उसका अंदाजा नहीं है। मेरे दोस्त याद रखो, मैं बहुत सोच समझ कर ये जुमला कह रहा हूं, मैं बहुत गौर फिक्र करके जुमला कह रहा हूं, और अल्लाह करे कि मेरा ये जुमला गलत साबित हो, अल्लाह करे कि मेरा ये ख्याल गलत साबित हो। मेरा ख्याल ये है, मेरा अंदाजा ये है, और मेरा गुमान ये है कि अभी इस वक्त जो है हिंदुस्तान के अंदर जामे दारुल इस्लाम उमराबाद की शक्ल में खड़ा हुआ है, शायद यह आखिरी उमराबाद होगा, इसके बाद इसके जैसा और कोई बनने के चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। जामे सल्फिया या आखिरी जामिया सल्फिया होने वाला है, इसके बाद शायद ही ऐसा कोई और इदारा आ सकेगा। मोहम्मदिया आखिरी मोहम्मदिया होने वाला है, शायद ही ऐसा और कोई मोहम्मदिया आने वाला हो। रैदुर्ग आखिरी रैदुर्ग हो सकता है, इसके बाद शायद ही और कोई रैदुर्ग आ सकता है। मैं ये तमन्ना करता हूं कि मेरा ये ख्याल गलत साबित हो, ये मेरी सोच गलत साबित हो, लेकिन हालात जिस तरफ लेकर जा रहे हैं ना उसमें हमें कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। याद रखो दोस्त, एक कश्ती जो है, बड़ा जहाज समंदर में चल रहा है, बड़े जहाज में सैकड़ों लोग उसमें बैठे हुए हैं, और अगर वो जहाज किसी तूफान का सामना करता है और किसी तूफान बदतमीजी का सामना करता है, उस जहाज में बैठने वाले लोगों को, उस जहाज में बैठने वाले मुसाफिरों को बचाने के लिए छोटे छोटे कश्तियां रखी जाती हैं। और जब बड़ा जहाज
तूफान बदतमीजी का सामना करता है, अगर टूट जाता है, तो फिर उन सवारों को बचाने के लिए छोटे छोटे कश्तियां का सहारा लेकर वो बाहर निकलते हैं। और ये छोटे छोटे कश्तियां, ये मकतब है हमारे बड़े बड़े जहाज हैं, लेकिन इन जहाजों के साथ भी जितनी तादाद में छोटी छोटी कश्तियां रखेंगे तो सारे के सारे मुसाफिरीन की हिफाजत की यानी जिम्मेदारी ली जा सकती है। अगर बड़ा जहाज है, छोटी कश्तियां नहीं है, तो फिर तमाम के तमाम मुसाफिरीन को बचाना यानी महाल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मेरे दोस्त, जिस अंदाज से ये मदरसा काम कर रहा है, मुझे अपना बचपना याद आ जाता है। हाँ, 92 में मेरा जो है दाखिला कहां हुआ? जामिया दरुल उमराबाद में हुआ। आज से 30 साल पहले मेरा दाखिला जामिया दरुल उमराबाद में हुआ। उस वक्त जब हमारी एडमिशन हुआ तो अगर वो जामिया हमसे माहाना 200 रुपए मांगता तो मैं लिख कर देता आप लोगों को, मैं आलिम नहीं बन सकता था। अगर मेरा जामिया मुझसे माहाना सिर्फ 200 रुपए अगर मांगता था तो मैं आलिम नहीं बन सकता था। क्यों? मेरे पास वैसे हालात नहीं थे, लेकिन मेरे जामिया ने 8 साल तक मुझे पढ़ाया और उस जामिया का एहसान मुझ पर है कि आज मैं यहां पर खड़े होकर कुछ बातें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के ताल्लुक से कर सकता हूं। तो वही खिदमत ये मदरसा कर रहा है। यहां पर किसी किस्म का डिमांड नहीं, किसी किस्म की फीस नहीं, किसी किस्म का मुतालबा नहीं। इनको जो है यूनिफॉर्म फ्री है, किताबें फ्री हैं, इनको इनामात दिए जाते हैं, इनका आना जाना फ्री, इनका जो है मुख्तलिफ औकात पर जो है दावतें दी जाती हैं, खिलाया जाता, पिलाया जाता, मोहब्बत से रखा जाता है। मैं बड़ा जो है दुआ करता हूं जिम्मेदारों के हक में कि अल्लाह ये जिस अंदाज से इदारा चला रहे हैं इसको बड़ा जहाज बना दे और इस जहाज में और सैकड़ों मुसाफिरीन के बैठने, सैकड़ों मुसाफिरीन के सफर की जगह पैदा हो जाए। मेरे दोस्त, ये छोटे छोटे बच्चे जो आज हमारे पास हैं, याद रखो ये हमारे बच्चे इस जो है ये पेपर दिख रहा आप लोगों को बच्चों, वन सरपरस्त आप जरा पेपर देखें, ये पेपर खाली पेपर है, इस पेपर पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। इस पेपर पर मैं आयतें लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, इस पेपर पर मैं हदीस लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, इस पेपर पर मैं अज़कार लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, इस पेपर पर मैं फूल ड्रा करना चाहता हूं कर सकता हूं। ये क्यों? ये पेपर खाली है, इस पर मैं आयतें, हदीसें और अज़कार, दुआएं, आदाब, फूल कुछ भी चाहे मैं कर सकता हूं। लेकिन अब जरा बताओ दोस्त, ये भी मेरे पास एक पेपर है, ये भी मेरे पास एक पेपर है, क्या इस पेपर पर मैं आयतें लिख सकता हूं? नहीं। क्या इस पेपर पर मैं हदीसें लिख सकता हूं? नहीं। क्या इस पेपर पर मैं अज़कार लिख सकता हूं? नहीं। क्यों? ये पेपर भरा हुआ है, ये पेपर भरा हुआ है। इस खाली पेपर पर मैं कुछ भी आयतें लिख सकता हूं, इस भरे हुए पेपर पर मैं कुछ नहीं लिख सकता। बिल्कुल यही मिसाल हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की है। ये बच्चों का ज़हन आज इस खाली पेपर की तरह है, ये बच्चों का ज़हन कोरे कागज की तरह है। इसमें आयतें लिखो लिख सकते हैं, हदीसें लिखो लिख सकते हैं, आदाब लिखो लिख सकते हैं, अज़कार लिखो लिख सकते हैं, और जो चाहे आप दीन उसको सिखा सकते हैं। लेकिन चंद सालों के बाद इन बच्चों का ज़हन ये पेपर की तरह बनने वाला है। चंद ही सालों के बाद ये बच्चों का ज़हन पेपर की तरह बनने वाला है। इस पेपर में कितने गैर जरूरी खबरें हैं जानते हैं आप? यानी जब आपके हाथ में पेपर आ जाता है तो शायद ही इसमें 2-4 खबरें आपके मतलब की होंगी, 2-4 बातें आपकी मतलब की होंगी, और ये फिर ये पूरा पेपर बेकार है, इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं। क्यों? गैर जरूरी जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, अनरिकॉग्नाइजेबल थिंग से ये पेपर भरा हुआ है। और इस पेपर को मैं सिर्फ एक बार हाथ में पकड़ता हूं, उसके बाद निकाल के फेंक देता हूं, उसकी कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो अगले चंद सालों में बच्चों का ज़हन पेपर की तरफ भरने वाला है। ऐसे बेकार चीजों से भरने से पहले ये जो है बच्चों के ज़हनों में कुरान भरने की जरूरत है, बच्चों के ज़हन में हदीसें भरने की जरूरत है, और ये काम इदारा कर रहा है। ऐसे हर मकतब में करने की जरूरत है, हर मदरसे में करने की जरूरत है, और आज हमारे हर बच्चे को मदरसे से जोड़ने की जरूरत है। याद रखो, हमारे बच्चों ने क्या पढ़ा? हमारे बच्चों ने साइंस पढ़ा, और हमारे बच्चे ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और ये हमारे बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं। अब गौर करें कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो ये मैथ्स भी पढ़ता है, और ये इंग्लिश भी पढ़ता है, और ये सोशल पढ़ता है, और बेशुमार चीजें पढ़ता है,
बेशुमार चीजें पढ़ता है, लेकिन आप जरा गौर करें कि भाई ये बच्चा सोशल स्टडीज पढ़ने के बाद एग्जाम देता है, उसके बाद खलास इस किताब से कोई ताल्लुक नहीं होता है, इस किताब से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो छोड़ देता है, भूल जाता है। आप अपने से पूछें, मैंने 7th पढ़ा, 7th की हिस्ट्री में क्या पढ़ा मुझे याद नहीं है, 5th पढ़ा, 5th के मैथ्स में क्या पढ़ा मुझे नहीं मालूम, 6th में जो है वो हिंदी में क्या पढ़ा मुझे नहीं मालूम, यानी वो आई गई खत्म हो गया। लेकिन जो बच्चा आपका ये पढ़ रहा है, ये मरे दम तक उसके साथ रहने वाला है, ये कभी छूटने वाली किताब नहीं, इस किताब कभी पसे जो है वो पसे पुश डालने वाला नहीं, हमेशा हमेशा की तरह है। अब जरा मैं और एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहता हूं। अब गौर करें मेरे दोस्त, ये आपका बच्चा है और ये साइंस उसके अंदर जा रहा है, और ये सोशल उसके अंदर जा रहा है, और ये इंग्लिश उसके अंदर जा रहा है, और मैथमेटिक्स जा रहा है, और अमका डमका कुछ भी अंदर जा रहा है उसके। ये कब तक रहता है? जब तक एनुअल एग्जाम नहीं होता तब तक अंदर रहता है। जैसे ही एनुअल एग्जाम हो जाएगा ना, ये अंदर से धीरे 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 निकलता जाएगा। एनुअल एग्जाम के बाद अंदर से ऐसा निकलकर बाहर आ जाएगा और पूरा निकल के खत्म हो जाएगा, फिर जैसे था वो वैसे ही रहेगा। लेकिन एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा और एक जामिया में पढ़ने वाला बच्चा, अब गौर करें आप कि वो बच्चा है, हाँ ये अब्दुर्रहमान है, और ये कुरान शक्कर की शक्ल में अंदर जा रही है, शुगर की शक्ल में अंदर जा रही है, और जामिया उसको पिला के ऐसा घोलता रहता है, उसकी जिंदगी में ऐसे उसको घोलते रहता है, और इतना घोलता है कि फिर दोबारा अंदर से शक्कर को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। यह हाल कुरान मजीद का है। उसको डालकर घोला जाता है, उसको डालकर पिलाया जाता है, फिर वो कभी जिंदगी में उसके बाहर निकलने वाला नहीं, कभी उसके बाहर आने वाला नहीं, हमेशा हमेशा रहने वाला है। यही काम इदारा कर रहा है। ये साइंस, ये मैथ्स, ये जो है सर्टिफिकेट दे देते हैं हमको। ये सर्टिफिकेट, कितनी बड़ी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ही मेहनत करना जरूरी है दोस्त। आईपीएस आप ऑफिसर बन के घर में बैठे, ड्यूटी पर नहीं गए तो क्या आपको सैलरी मिलने वाली है? नहीं। आईएएस ऑफिसर बने और घर में बैठ गए तो क्या आपको सैलरी मिलने वाली है? नहीं। पेपर, कागज का पेपर मिलेगा, टुकड़ा मिलेगा सर्टिफिकेट की शक्ल में। लेकिन यह कुरान आपसे कहता है कि जितनी आयतें पढ़ते जाओ जन्नत मकाम बढ़ाते जाओ, जिस कदर तिलावत करते जाओ जन्नत का मकाम आगे बढ़ाते जाओ। पढ़ने की शक्ल में जो है उसको यह ऑफर दिया जा रहा है और इसके सामने पेशकश की जा रही है। और दोस्त, ये बच्चे हमारे जो आज यहां पढ़ रहे हैं, यानी यूं समझो आप कि ये बच्चे ये हमारे कुरान मजीद से ऐसे ही जुड़े हुए रहेंगे इंशाअल्लाह, जैसे हमारे फोन इस जो है चार्जर से जुड़े हुए रहते हैं। अगर ये चार्जर ना हो कितना बेचैन हो जाते हैं हम लोग। चार्जर ना हो हमारा फोन जो है सारी दुनिया से हमको काट देता है। चार्जर ना हो तो हम बिल्कुल परेशान नजर आते हैं। तो जो चार्जर का मकाम है उससे बड़ा मकाम इस कुरान मजीद का होना है। अगर ये ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो ये क्यों? ये हमें चार्ज करता है, ये हमें एनर्जी देता है, ये हमें सपोर्ट करता है दुनिया जुड़ने के लिए। तो जिस तरह चार्जर का मकाम है उससे बड़ा मकाम कुरान मजीद का है, जो हमें हर दिन बच्चे हमारे तिलावत करते रहते हैं और वो चार्ज करता रहता है, हमें जिंदा रखता है, हमें आगे बढ़ने का मौका अता करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अजीज बच्चे हमारे, बहुत मेहनत कर रखी है इन्होंने माशाअल्लाह। और जो सिस्टम से मदरसा चल रहा है, यही सिस्टम चलता रहा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा ये इदारा यानी एक बड़े सतह पर काम करने वाले बनेगा इंशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद देता हूं अब्दुर्रहमान साहब को, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह, और हाफिज मोइनुद्दीन को बहुत अच्छी अंदाज से निजामत संभाल रहे हैं माशाअल्लाह। असातिज़ा पूरे टीम के शक्ल में काम कर रहे हैं, एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं और फिर क्लासों में जाते हैं और बच्चों से जो है मोहब्बत से पढ़ाते हैं। और हमारे बच्चे अदब से स्कूल मदरसे को आ रहे हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी है
کہ آپ ان بچوں کی قدر کریں, ان بچوں کی قدر کریں, عام بچوں کی طرح نہ رکھیں ان کو, عام بچوں جیسا سلوک نہ کریں, اور ان بچوں کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ کا بھی قدر کریں. کیوں؟ یہی اساتذہ ہیں جو آپ کے بچوں کو ہیرے بنا رہے ہیں, یہی اساتذہ آپ کے بچوں کو ڈائمنڈ بنا رہے ہیں. ان کی قدر آپ ضرور کریں. اگر اساتذہ ہیں, ایک مثال, بچوں ذرا دیکھو مجھے, یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ زیرو ہے. یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ زیرو. اچھا, اس زیرو کی ویلیو ہے بیٹا؟ نہیں. اور ایک زیرو لگایا میں, کوئی ویلیو ہے؟ اور ایک زیرو لگا میں, کوئی ویلیو ہے؟ 10 زیرو لگایا میں, کوئی ویلیو بننے والی ہے اس کی؟ نہیں. 10 زیرو, 20 زیرو, 30 زیرو کی کوئی ویلیو بننے والی نہیں. لیکن اس 10 زیرو کے سامنے میں نے ایک لگا دیا, اب کیا بنے گا؟ ویلیو بنے گی. صرف ایک لگانے سے ویلیو بنے گی, ایک کو ہٹا دو تو ساروں کی ویلیو ختم ہو جائے گی. تو یہی مثال ہمارے بچوں کی ہے. سارے بچے 0 0 0 0 کی طرح ہمارے بچے, اور ایک استاذ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ان کی ویلیو کو بڑھانے والا ہے. اگر یہ ایک نہ ہو تو اس زیرو کی کوئی ویلیو نہیں. اگر ایک ہے, استاذ ہے زندگی میں, تو ان سارے زیرو کی ویلیو بننے والی ہے. میں گزارش کرتا ہوں ماں باپ سے, قدر کریں, ادارے کی قدر کریں, بچوں کو پابندی سے بھیجیں, تیاری کرا کے بھیجیں, اہتمام کریں. اور اساتذہ محنت کر رہے ہیں, ذمہ داران وہ 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ اس ادارے کو بڑا جہاز بنا دے, اس ادارے کو ملک قوم ملت کی خدمت کے لیے وقف کر دے. اس ادارے سے اس طرح اب تک محنت ہو رہی ہے, اسی طرح اور محنت کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.